right, good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Miss. Few students today. Good morning, Miss. Good morning. So we will wait for a few more minutes, okay? Good morning. There are only 15 people. We'll wait for a few more minutes. Let's see if everyone joins in. Till everyone is joining, you guys know what to do. What are we going to do now?
Any suggestion? Any guesses? Yes, Misbah. We do today English in story of Snow White and geography homework. Yes, that's right. But till we are waiting for people to join in, till then, what are we going to do? Like right now. Not everyone has joined now. So any guesses? Yes, Ria is raising hand. Yes, Ria, tell me. Okay, Smile, I'll ask everyone to join in. Shashwat is joining. Okay, we're gonna share our feelings. Come on, everyone head to the chat window. Go to the chat window and start writing how are you feeling today and why are you feeling however you're feeling. Yeah? So go to the chat window and start writing how are you feeling today. And let me ask everyone to join. A lot of students from Lata Miss's classes are joining today. Yeah, you are all from Lata Miss class now? Shruti, Shubham, Ganesh, Pooja, Naina. You're all from Lata Miss का class ना? आप सब Lata Miss की class में हो ना? Yes, miss. Yes, miss. Okay, okay. Thank you for telling me. That gives me better idea. Yes, miss. So अभी हम ये कर रहे हैं, हम chat box पे जाएंगे और हम ये लिख रहे हैं कि हम कैसा आज feel कर रहे हैं. Abhi, how are we feeling? Are we excited for the class? Are we happy? Are we feeling sad? So however you're feeling, जैसा भी आप feel कर रहे हो, please chat window पे जाओ and लिखो. I can see Misbah, Abhishek and Jyoti, all three are feeling very happy and Misbah is right, he's feeling very good. All right. I'm waiting for everyone to write in. We'll start only when everyone has written. Come on, quickly. All right, Khushnuma has written she's feeling very happy because Shrishti's birthday is approaching. She's grateful for her family and friends, and her goal for today is to give so many answers. All right. Ria, you're raising your hand. Do you have anything to say? Ria, you're raising your hand. Do you have anything to say? No, miss. No. Okay, okay. Right, Ganesh writes that he's feeling happy. Thank you for writing, Ganesh. Akshay is right, he's feeling happy. Pooja and Shubham are also feeling very happy. All right, anyone who's not feeling nice today, who's not feeling happy and who's sad, and that's also okay if you want to share that. Zainab and Faisal may say one of them is feeling happy, whoever wrote. Shrishti is feeling joyful because for the festivals. Oh, Shrishti, you want to tell us more about these festivals? Which festivals are you talking about? Shrishti? Yeah. Navratri. Oh, Navratri is coming. When is it? When is it? When is it? Do you know? Some October 17. October 17. Okay, okay. Thank you for telling me as well. All right. But because of social distancing this time, there will be a little less fun, a little less dancing, or maybe no dancing. It's okay. All right. So we'll begin our class. So all the students who are जो भी students लता मिस की क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं और आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता देती हूँ आज हम क्या करने वाले हैं. So today, okay, there are few more answers on the chat window. Asif Rodi is happy because Mumbai Indians versus Royal Challengers match in Bangalore. Yes, I'm very happy for that as well, Asif. Thank you. Zainab and Faisal, one of you is sad. Why? What happened, Cher? Muskan is happy. She's right. She's happy today because Snow White something. Muskan, you wanna tell us about it? Rinky's feeling happy. She's grateful her birthday is approaching and her goal is to participate today. Okay, anyone would like to share on the large chat, on the large group, in the large group? How are you feeling or anything? Anyone who would like to share in the large group?
No one wants to share. Everyone is very sleepy today, Monday morning. कल एक दिन break मिल गया तो अब सब सो रहे हैं, है ना? All right, it's okay. But you will have to participate later. Okay, Ganesh is like, he's very happy because he got a new laptop. Very nice. I'm very happy for you as well, Ganesh. Okay, so as I was saying, तो जो भी लता मिस की क्लास से आए मैं आपको बता देती हूँ. So हम past 2 weeks से स्नो वाइट का हमने सबसे पहले स्टोरी पढ़ा था. हमने ये भी देखा था कंसेंट क्या होता है. कंसेंट मतलब होता है परमिशन देना. फिर हमने ये सीखा था कि हम स्टोरीज को रीराइट कैसे कर सकते हैं, हम स्टोरीज को दोबारा से कैसे लिख सकते हैं. कैन समवन टेल मी व्हाट डज रीराइटिंग अ स्टोरी मीन्स? क्या हम सेम चीज को कॉपी करके लिख देते हैं दोबारा से, और डू वी मेक फ्यू चेंजेस? यस मुस्कान, टेल. We changes on the Yes. story. Yes, that's right. We make changes in the story. We do not copy the story. हम कॉपी को स्टोरी को as it is कॉपी नहीं करते हैं, हम स्टोरी में चेंजेस कर देते हैं and then we rewrite the story. So good morning Shivani. Last week we engaged in a lot of discussion. हमने बहुत सारा discussion किया था, I think Monday to Thursday, and we discussed what's right, what's wrong with the story. So today we are going to share our stories. On Saturday, Arsia shared, but I want the remaining students to also share their stories today, what changes you have made. After that, okay, before sharing the stories, what we're going to do is, I gave you a homework in geography. So we're going to discuss about that. Then we will move on to sharing the stories. Clear? Any confusions? So first geography and then we will share the stories. Got it? I will share my screen now. All right. Can Muskan see my screen? Muskan, are you able to see my screen? Yes, miss. All right. Thank you. Okay, everyone on mute. This is our class ka rule. If you are in the class, you have to mute. Keep yourself on mute all the time. जब आप आंसर दोगे तभी आपको अनम्यूट करना है. All right. So we will start with geography homework. So let's go over what we did the other day. Okay. So on Friday we started this chapter called air pressure, and what we did was we understood what air pressure is. हमने ये समझा था air pressure क्या होता है, and हमने factors पढ़े थे जो air pressure को affect करते हैं. Who can tell me what air pressure is? We did this on Friday, but who can tell me what air pressure is? Come on. Either I will ask somebody or raise your virtual hand to tell me. Come on, come on. I know you all know. Okay, Ganesh is raising hand. Yes, Ganesh. मीन्स जब ज्यादा एयर इकट्ठा हो जाता है एक ही जगह पर, तो फिर जैसे कि अभी पानी है बोतल में, तो बोतल के अंदर हवा तो रहती है, लेकिन अगर ज्यादा हवा रह जाता है और अगर वही अगर बोतल में थोड़ा छेद रहा तो एयर प्रेशर की वजह से वो पानी को धक्का लगता है और फिर वो पानी नीचे गिर जाता है. तो फिर ऐसे ही एयर प्रेशर ज्यादा जगह इकट्ठा हो जाता है एक ही जगह पर, तो उसको एयर प्रेशर बोलते हैं. Okay, Ganesh, you're not wrong, but there are थोड़े से mistakes in this. So first मेरा question था कि what is air pressure, और आपने आंसर दिया कि air pressure की वजह से क्या होता है, what happens due to air pressure. So you were right. The example that you gave was what happens due to air pressure. So because of that air pressure, the water comes out of the hole in the bottle. That's right. Now the question is, what is air pressure? So it doesn't happen. It's not only because a lot of air is coming together to create air pressure, not necessary. Right now, are you guys feeling air pressure or not? Right now, are you guys feeling air pressure? Okay, someone is not on mute. Kanita and Rinki, please mute yourselves.
Yeah. Right now, are we feeling air pressure? Are we feeling the pressure of the air? Misbah, tell me. क्या याद है air pressure का? Are we feeling air pressure right now? Air क्या होता है? एयर हवा। हवा। प्रेशर क्या होता है? उस दिन राज और अमृता ने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था when Amrita was putting pressure on Raj का head. Remember? She was putting, याद है ना? गुड उसको हमने मॉर्निंग एयर प्रेशर मिस। से कैसे रिलेट किया था? गुड मॉर्निंग अर्सिया। उसको हमने एयर प्रेशर से कैसे रिलेट किया था? What did we say? Amrita was putting pressure on Raj's head, and we said the more weight she puts, the more pressure is generated. How did we relate it to air pressure? Riya, you wanna tell me? Okay, Arsia is raising hand. Arsia, next time please raise your virtual hand, please. Okay, Arsia, you go. So we are discussing, Arsia, what is air pressure? Air pressure is that when we air has weight when the air comes, so it when like Amrita was applying pressure on Raj, when she apply more pressure on Raj, so Raj is going down Yeah. and he's feeling like his head was so heavy. So and when in our near there is air pressure, but we can't feel because we are living in the world and it get habit to do. And air pressure is that we that air applies pressure The on force that air applies on us, in short, or on all the earth, on all the things on earth. Very good, Arsia. Perfect. That's right. So Arsia related it to Amrita and Raj ka example. The other day, Amrita was applying pressure on Raj ka head, right? And Raj was feeling heavy. So even air, as Arsia said, air has molecules. Air molecules का बना होता है. Those molecules have weight. उन molecules का weight होता है. Now, because gravity is pulling everything towards Earth. Gravity क्या करता है? सबको अर्थ की तरफ पुल करता है. So exactly like that, atmosphere में air है, तो air molecules को भी gravity ने नीचे खींचा है. So जब air molecules are pulled downwards, नीचे क्या है? Earth का surface, sea, land, animals, plants, humans, हम सब है. So इन सब पे क्या apply होता है? इन सब पे pressure apply होता है. You guys do. So everyone put your right hand forward. Come on, everyone put right hand forward. Now take your left hand. Show me your left hand. Now place this. Don't apply pressure. बस उसको रख दो. Force नहीं लगाना है. अब start applying pressure. Start applying pressure. ज़्यादा क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है. नीचे जा रहा है, right? Because अब जितना ज़्यादा apply करोगे left hand से pressure, उतना ज़्यादा right hand नीचे जाएगा. Exactly like that. So this is my air molecule. This is everything on earth. Earth का surface भी है, earth का water भी है, human, plants, animals, सब कुछ ये वाला hand है. ये मेरे earth air के molecules है. Gravity इनको नीचे खींच रहा है. तो नीचे जाने के लिए जगह नहीं है. तो क्या हो रहा है? ये pressure apply कर रहे हैं जो नीचे चीजें हैं उन पे. समझा? Understood what is happening? So air molecules are pulled towards earth due to gravity, and because of that they are applying force. They are applying force on all the things on earth. Yes, Riya, you are raising your hand. Miss Payal, Miss teach us this. Payal Miss taught you this. Which chapter mein she taught you this in? Third chapter, natural resources, properties of natural resources, right? Now we are doing the chapter, the entire chapter is about air pressure. उस टाइम पे आपने सिर्फ वन चीज किया था, व्हाट इज एयर प्रेशर, सिर्फ इतना सा. अब हम एयर प्रेशर के डिटेल में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एयर प्रेशर की वजह से हाउ द वेदर इन द एंटायर अर्थ गेट्स अफेक्टेड. पूरे अर्थ का वेदर कैसे एयर प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है. मॉनसून्स थोड़े टाइम के लिए आते हैं, थोड़े टाइम में सर्दी होती है, थोड़े टाइम पे गर्मी होती है, राइट? ऑल ऑफ दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर. या एयर प्रेशर की वजह से मॉनसून्स आते हैं.
अगर एयर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो वी वुड हैव नेवर गॉटन मॉनसून्स. मॉनसून्स आर व्हाट? मॉनसून्स आर विंड्स. एंड विंड्स क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि अर्थ में एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है. ओके, वी विल नॉट गो देयर, लेट्स स्टिक हियर. So now we have understood what's air pressure, right? This is what we did. So I'll share my screen so that you guys can recall. Okay, before we move forward, class rules: participate, ask questions and answer whenever I ask you. If you don't understand, you need to ask. Second, you have to raise your virtual hand. ऐसे हाथ नहीं raise करना है जैसे मैं कर रही हूँ. No, you have to raise your virtual hand. Virtual hand को option होता है, like that you need to raise. Then you will keep yourself on mute if you are not talking. अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को mute पे रखेंगे. All right. So we saw the activity the other day. वो activity कौन सा था? Balloon वाला activity था. इस activity से what did we learn? What did we learn through this activity? Who wants to say? Raise your virtual hand, please. Amrita and Raj have raised their virtual hand. Yes, Amrita and Raj. Teacher, air has weight. Air has weight. Very good. Raj, tell me more, explain more about it. Air has weight. हमने ये देखा था कि एयर के पास भी वजन है ना? एयर भी के पास भी वेट है, ये हमने देखा था. कैसे देखा था? Teacher, there is one stick and one scale. We put here also balloon and here also. Then we फोड़ देंगे उसको तो वेट रहेगा और नीचे आ जाएगा. Yes, yes, correct. So what did we see? एक हमने स्केल लिया, दोनों तरफ पे इक्वल साइज का बलून का इक्वल साइज कब होगा? जब दोनों में इक्वल एयर होगा. वो दोनों को टाई किया towards the ends of the scale. Then we took a thread and tied it from the middle of the scale. What did we see? Both were balanced, both were equal. Yeah, both sides of the scale. Then what did we do? We took a scissor and we cut one of the balloon. So when we cut it, the air inside the balloon came out. It escaped. So this balloon got light and the balloon which had air was heavy. So this side went down. जब ये साइड नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि ये वाला साइड भारी था. यहाँ पे जो हवा था उसका वेट था, उसकी वजह से वो नीचे चला गया. Yes, Arsia, you're raising hand. I was telling that yesterday I done that activity, so I know how the air has weight, but we can't feel it has weight when I apply this activity. So I know air has weight because of molecules. It has weight, and my other side scale goes down and one side leave there only. Yeah, so Arsia is saying she did the experiment and from the experiment she found that air has weight. Okay, you can't feel it in daily life. Why? You can't feel it because as Arsia was saying, मैंने last class में बताया था, जब से हम born हुए थे उससे पहले से ये वाला जो एयर का प्रेशर है हमेशा से अपने ऊपर अप्लाई हो रहा है. बिकॉज ये हमेशा से है, हमारी बॉडी एडजस्ट हो गई है इसके साथ रहने के लिए. आवर बॉडी हैज बिकम अकस्टम्ड टू लिव विद दिस अमाउंट ऑफ वेट. इफ आई वर टू रिमूव दिस वेट, अगर जो एयर ने प्रेशर मुझ पे अप्लाई किया है और हम सब पे अप्लाई किया, अगर उसको हटा देंगे, वी विल ऑल डाई. यस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज हमारी बॉडी में जो भी नर्व्स है एंड एवरीथिंग वो प्रेशर में रहना सीख गए हैं. वो बने ही ऐसे कि वो प्रेशर को हैंडल कर ले. इफ यू गो टू मून, क्योंकि मून का साइज छोटा है, वो ग्रेविटी कम अप्लाई करता है, तो वहां पे यू नीड एस्ट्रोनॉट्स वाले सूट, यू नीड स्पेशल सूट. व्हाई? बिकॉज वहां पे एयर प्रेशर नहीं है, एयर प्रेशर बहुत कम है. सो दैट्स द रीजन. ओके, वन थिंग मोर, किस किस के घर पे एलपीजी वाला सिलेंडर है? गैस का सिलेंडर किस किस के घर पे है? मेरे घर पे. क्या? अब गैस के सिलेंडर को जब आप गैस को ऑन करते हो, ओके ओके, व्हेन यू स्विच ऑन द गैस, उससे लिक्विड बाहर आता है कि गैस बाहर आती है? लिक्विड बाहर आता है. गैस बाहर आती है.
Okay, you will raise your virtual hand to answer. अगर आपको आंसर करना है तो प्लीज अपना virtual hand raise करो so that I can give everyone an choice. Binda is raising hand. पहले बिंदे then नैना. Yeah, Binda. I think heat. Heat तो जब हम उसको light करते हैं तब आता है. Yes, नैना. मीन्स गैस अगर चालू करेगा तो आग निकलता है. आग निकलती है पक्का. एक काम करना, आज मम्मी के साथ किचन में जाना और मम्मी को बोलना गैस ऑन करो. गैस ऑन करते उनको बोलना लाइटर या मैच बॉक्स से उसमें लगाए नहीं आग, तब गैस ही बाहर आएगी. दिखती नहीं है ना क्या बाहर आ रही है. आज जाके देखना क्या होता है. वो गैस होती है जो बाहर आती है. जब आप उसको लाइटर से या मैच बॉक्स से जब लाइट्स लगाते हो तो क्या होता है, वो गैस कैसी होती है, वो इनफ्लेमेबल होती है. इनफ्लेमेबल मतलब जो आसानी से आग पकड़ ले. तो फिर वो गैस आग पकड़ लेती है बट बाहर आती है आग. इसलिए बोलते हैं कभी भी गैस चला के नहीं जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो गैस लीक हो जाती है और हर जगह गैस फैल जाती है. दिखती तो है नहीं, हल्की सी स्मेल आती है बट दिखती नहीं है. और अगर गलती से किसी ने कहीं और आग जलाया तो पूरा घर आग पकड़ सकता है. दैट्स व्हाई गैस सिलेंडर को ध्यान से यूज करते हैं. गो टुडे सी. नाउ आस्क योर मदर दिस थिंग. जब न्यू सिलेंडर आता है तब वो बहुत भारी होता है पर उसके अंदर है तो गैस ही. जैसे ही वो सिलेंडर खत्म हो जाता है वो हल्का हो जाता है. क्यों? क्योंकि गैस हैज वेट. गैस का वेट होता है. यस. कैन एवरीवन कीप देमसेल्व्स ऑन म्यूट? कम ऑन. नैना आप म्यूट पे नहीं हो, प्लीज म्यूट पे रखो अपने आप को अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हो. थैंक यू. सो ये एक और तरीका है जिससे आप देख सकते हो गैस का वेट होता है. सो गो टू योर किचन एंड फाइंड आउट टुडे. ओके, टॉक टू योर मदर्स, दे वुड नो. उनको ऑलरेडी पता है, मे बी उन्होंने पढ़ा नहीं है बट उनको ये बात पता है. ओके, सो उस दिन भी अंडरस्टूड एयर हैज वेट एंड बिकॉज एयर हैज वेट इट एक्सर्ट्स प्रेशर. वो नीचे जो भी चीजें हैं उन पे प्रेशर अप्लाई करता है. ये डायग्राम हमने इसलिए बनाया था एंड आज सब भूल गए. डायग्राम बनाने के बाद भी भूल गए ना सब. All right, let's move forward. Then we came to what are the factors that affect air pressure. Air का pressure किस किस चीज से affect होता है. Two people are raising hand. Yes, Abhishek, you say. You are raising your hand and you have not said anything till now. Yes, Abhishek. Okay, Abhishek, please. All right, let me see who are the new people. Okay, same students are raising hand every time. Why? Okay, Shushti. Shushti, please tell me. What are the two factors that affect air pressure? The two factors are first altitude and second temperature. Wonderful. First is altitude, second is temperature. Altitude का मतलब क्या होता है सृष्टि? When we go higher and higher. Height. Height. Altitude का मतलब होता है height. ठीक है? So you are right. Altitude का मतलब होता है height. Now who can tell me the answer? Altitude की वजह से, height की वजह से air pressure कैसे change होता है? All right, new people. Zainab, आपको याद है हमने किया था? Do you remember, Zainab? You were there in the class also. मीन्स आपका कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? Whoever is talking, please raise your virtual hand. You are breaking class ka rules. If you want to ask me anything, you need to raise your virtual hand. Okay. And class stays from 9 to 10, 1 hour. Yes, Zainab, do you remember? Jayashree, आपको याद है? Altitude की वजह से कैसे air pressure change हो जाता है? Only Arsia studies, क्या? Only she is raising her hand. What about everyone else? Okay, Arsia, tell. Because altitude, when we go higher, so the air pressure was very less because
in the sea, it was all the air pressure, and when we go on the mountain, so we feel that we are so light, and we will fly up. So because of that, air pressure is less on the mountain and more on the sea. Air pressure is more on the sea, correct. Now look at this. Miss, you have made this diagram. Yeah, I had made this diagram. I'm making it again because only you remembered the answer. All right. So this is my Earth. अभी बहुत गंदा बना है, उस दिन better था. This ये नीचे वाला Earth है और एटमॉस्फेयर इसके चारों ओर होता है, इसलिए ये बड़ा वाला सर्कल बनाया है. ये नीचे सी है, ये माउंटेन है. नाउ माउंटेन के ऊपर थोड़ा सा ही एटमॉस्फेयर है, बिकॉज एटमॉस्फेयर थोड़ा सा है, एयर मॉलिक्यूल्स कम है, और अगर एयर मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर वो कम अप्लाई कर पाएंगे, राइट. इफ यू सी एट द सी, व्हाट इज हैपनिंग, एयर मॉलिक्यूल्स इतने सारे एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सी पे वेट अप्लाई कर सकते हैं, एयर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स व्हाई सी पे एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है. समवन इज नॉट ऑन म्यूट, कम ऑन एवरीवन ऑन म्यूट. Prateek, you have to keep yourself on mute, right? So higher altitude, the lower is the pressure. जितना हम ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर उतना ही कम होगा, बिकॉज ऊपर एटमॉस्फेयर उतना ही कम होता जाएगा हमारे ऊपर, करेक्ट. सो मैं अगर यहाँ पर हूँ, वेट लेट मी गेट माई पेन ना, मेरे को इससे प्रॉब्लम हो रहा है. So quiz question everyone. I'm gonna make a diagram and I'm gonna ask anyone कि कहाँ पर किस पॉइंट पे एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है. Okay, Miss. Excited. Thanks. All right. So this is my Earth. This is a mountain. यहाँ पे sea है, ठीक है. Now there is a person who is swimming in the sea. There is a person at this point who's climbing up, and there is a person at the top of the mountain. So top of the mountain is A, who's climbing is B, and who's in the sea is C. Okay. Now there is a person who's deep diving into the sea. एक person ने scuba diving किया है, यानी कि वो sea के अंदर dive किया है. So that person is somewhere here. तो वो और भी नीचे है, यहाँ पे है, ये और सी है, ये पूरा सी ही है. अर्थ के अंदर अगर आप जाओगे तो सी होता है जहाँ पे सी है, राइट. तो एक पर्सन इधर है, ये पॉइंट मैं बोल रही हूँ डी है, ठीक है. नाउ माउंटेन इज ए, क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन बी, हियर सी, एंड यहाँ पे इनसाइड द सी इज डी पॉइंट. नाउ माय क्वेश्चन इज टू आसिफ. आसिफ, यू टेल मी, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, किस पर्सन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है. विच पर्सन इज फीलिंग मोस्ट प्रेशर? आसिफ, you have not answered. Which person is feeling most pressure, Asif? A, B, C, D. A, B, C, D. Tell me. A, B, C, D में से बताओ. D. 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 Okay, Asif, can you tell me why D? Because he is down. He is down. Very good. So उसके ऊपर अगर ये मेरा एटमॉस्फेयर है, very good. So उसके ऊपर कितना, इतना तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है. ओके ओके. ओके, एक सेकेंड. सो इतना तो मेरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और यहां से यहां तक मेरा वाटर का भी प्रेशर है, करेक्ट. ऑल राइट. नाउ very good, 5 points to Asif. Next, everyone write in the chat window कि कौन से पर्सन के पास
सबसे कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है? विच पर्सन इज फीलिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर? एवरीवन राइट इन द चैट विंडो ABCD में से हु इज फीलिंग लीस्ट प्रेशर? सबसे कम प्रेशर किसको फील हो रहा है? राइट इन द चैट विंडो, कम ऑन। ABCD में से सबसे लीस्ट प्रेशर किसको फील हो रहा है? ऑल राइट, एवरीवन इज राइटिंग A। वंडरफुल। तो नाउ आई नो आप सबको एयर प्रेशर ढंग से समझ आ गया है। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना सा एयर है, तो जितना कम एयर होगा उतना कम प्रेशर अप्लाई होगा, राइट। सो अगर मैं ऑर्डर लिखूं, हाईएस्ट प्रेशर और यहाँ पे मैं लोएस्ट लिखूं, तो सबसे हाई कहाँ पर आएगा? सबसे हाई होगा डी पे, डी के बाद सी पे, सी के बाद बी पे, और सबसे कम कहाँ पे होगा प्रेशर? ए पे। एनी डाउट्स हियर? किसी को कोई भी डाउट है कि DCBA कैसे आंसर आया, कि हाईएस्ट सबसे ज्यादा प्रेशर डी पे होगा, सबसे कम ए पे होगा, एंड देन बी और सी? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि हम सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं। जयश्री रेज्ड हैंड। यस जयश्री, एंड मिसबा इज आल्सो हैविंग डाउट। ओके जयश्री, पहले आप बताओ, फिर मिसबा आप बोलना। Teacher, you said that more the air pressure is on the sea, but why it is on the sea, not on mountain? It is mountain is in high na. करेक्ट, माउंटेन पे भी एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि माउंटेन पे एयर प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, बट मैंने ये बोला कि माउंटेन पे एयर प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। अगर सी पे इतना ज्यादा अप्लाई है, देन माउंटेन पे इतना अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि माउंटेन एयर प्रेशर कैसे अप्लाई हो रहा है? एयर उस पे वेट डाल रहा है, एयर उस पे फोर्स लगा रहा है। नाउ जो मेरा सी है, आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन सो दैट यू कैन सी। जो मेरा सी है, सी के ऊपर इतना सारा, ये जो एरो दिख रहा है रेड वाला, इतना सारा एयर है सी के ऊपर, तो जितना ज्यादा एयर होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो सी पे एयर प्रेशर बहुत हाई है। यहाँ पे इफ यू सी माउंटेन पे सिर्फ इतना सा है। आई विल टेक सम अदर कलर एंड शो। माउंटेन पे इतना सा एयर मॉलिक्यूल्स है, राइट, माउंटेन के टॉप पे। तो ये है, और सी के टॉप पे कितना है? सी के ऊपर इतना सारा एयर मॉलिक्यूल्स है। तो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल कहाँ पर है जयश्री? सी के ऊपर कि माउंटेन के ऊपर? सी के ऊपर। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनका उतना ज्यादा ही वेट होगा। Yes. अगर तो वो उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके हाथ में एक नोटबुक रखूं या फिर मैं आपके हाथ में 20 नोटबुक्स रखूं, कब आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा बुक से? 20 बुक्स में, राइट। सेम, तो यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर एयर प्रेशर ज्यादा होगा सी पे, क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स जो सी के ऊपर है वो बहुत ज्यादा है। माउंटेन पे क्या होता है, हम ऊपर चले जाते हैं। अगर हम ऊपर चले गए तो एयर, हमारे ऊपर जो एयर होगी वो कम हो जाती है, और उसी की वजह से एयर प्रेशर माउंटेन पे कम हो जाता है। समझा जयश्री, या फिर स्टिल डाउट है? No. नो मतलब? समझा। Okay, thank you. Misbah also had a doubt. Misbah, tell me what was your doubt? मानसी दीदी, Yeah. वो सी वाले पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हाँ. अगर डी वाले पे पड़ेगा ज्यादा प्रेशर, वो सी के नीचे सांस नहीं ले सकते ना, तो एयर जा भी नहीं सकता, तो कैसे डी वाले के पास पड़ेगा ज्यादा प्रेशर? Very true, very true. एकदम fair question है. So मिसबा, आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ हवा प्रेशर अप्लाई कर सकती है कि कोई भी चीज जिसके पास वेट है प्रेशर अप्लाई कर सकता है? जिसके पास वेट रहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे जो इंसान डी पे है, जो सी के अंदर है, उस पे दो चीजें प्रेशर अप्लाई कर रही है। फर्स्ट, अगर सी और डी को कंपेयर करें, यहाँ पे मैं दोबारा से बना देती हूँ, ये मेरा सी है और यहाँ पे मैं बना देती हूँ डी को। उप्स, ठीक है। नाउ यू सी, एटमॉस्फेयर यहाँ पे इतना अप्लाई कर रहा है। अगर ये मैं एटमॉस्फेयर ऐसे सीधा रखूं, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर इतना है,
बट यहाँ पे एडिशनल वाटर भी है जो इधर नहीं है। सी के पास वाटर नहीं है बट डी के पास पानी भी है, डी के ऊपर पानी भी है, सी के ऊपर पानी नहीं है। सो डी पे सिर्फ अगर मैं एयर प्रेशर की बात करूं तो एयर प्रेशर सी और डी पे इक्वल होगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ एयर सी और डी के ऊपर सेम है। पर अगर मैं प्रेशर की बात करती हूँ देन जो डी के पास एयर प्रेशर भी है प्लस वाटर का भी प्रेशर है, इसके पास में सिर्फ एयर प्रेशर है। सो ओवरऑल अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो डी के पास ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कंपेयर टू सी। समझा? He's saying समझा। Okay, any more doubts? Okay, Riya and Arsia have doubts. Riya बताओ। Miss, I don't have doubts. I am saying that why when the people in which they go in small deep, so they don't have big small pressure, and when they go so deep, so they have pressure. You answered your own question, Riya. आपने अपना खुद का आंसर दे दिया। आपने कहा जब वो शैलो वाटर में जाते हैं, जब थोड़े से वेव्स में जाते हैं तो पानी कहाँ पे, रिया अनम्यूट करो और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है? सो यू सेड शैलो वाटर में पानी कम होता है कि डीप सी में हमारे ऊपर पानी ज्यादा होगा? पानी ज्यादा कब होएगा? When we go in deep. When we go in deep, करेक्ट। अब डीप में जा रहे हैं, अगर पानी ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा है। Yes. तो अगर वेट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा, राइट? ओके, नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज, जो भी डीप डाइव करता है ना, पानी के बहुत नीचे जाता है, वो एकदम से नीचे नहीं जाता है। व्हाई? बिकॉज आपका बॉडी यूज टू नहीं होता है इतने ज्यादा प्रेशर को हैंडल करने के लिए। सो वो रुक रुक के जाता है, वो थोड़ा जाता है, देन वहां पे थोड़ी देर उस हाइट पे, डेप्थ पे वो थोड़ा स्विम करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी यूज टू हो जाए। फिर वो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, फिर वो वेट करते हैं वहां पे थोड़े मिनट्स के लिए, उनकी बॉडी यूज टू हो जाए, फिर वो और नीचे जाते हैं। लाइक दैट दे कीप गोइंग डाउन। और ऊपर आते समय भी एकदम से ऊपर नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फिर वो रुकेंगे, फिर और ऊपर आएंगे, जिससे कि उनकी बॉडी यूज टू हो जाए। ओके, मुस्कान ऑल्सो हैज अ क्वेश्चन। यस मुस्कान। बस आपने भी डीप डाइव किया है ना? हाँ, yes, I have done scuba diving in the ocean. Okay, you know from the picture now? Okay, all right. Arsia, yes, tell me. Shashwat also raising hand. Miss, why we can't take breathe in the underwater and Because in the sky? okay, because we can't breathe underwater, because जब हम breathe in करेंगे तो एयर वहां पे कैसे होती है? एयर पानी में ही डिसॉल्व होती है, बट पानी भी होता है, राइट? तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो पानी अंदर चले जाता है। योर लंग्स कैन नॉट हैंडल वाटर, लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, सो दे कैन नॉट वर्क। दैट्स व्हाई वी कांट ब्रीथ, क्योंकि सिर्फ एयर अंदर नहीं जाता है, वाटर भी अंदर जाता है। सो यू नीड स्पेशल इक्विपमेंट। यहाँ पे यू नीड अ गैस का सिलेंडर एंड यू नीड एक पाइप जो आपके मुंह में आके ऐसे कनेक्ट होता है और आप उस एयर को ब्रीथ इन करते हो, वो सिलेंडर में जो एयर होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी मिक्स नहीं होता है। ये शाश्वत, वन लास्ट क्वेश्चन फिर वील मूव फॉरवर्ड। ऐसे तो हमारा पूरा क्लास डिस्कशन में चला जाएगा। Ocean, then we did not get like air pressure. No, say that again, Shashwat. In ocean, why do we not feel air pressure? Same reason. आप सब, all of you are born in Mumbai, right? Mumbai is near the sea. Now, since you were born, even before you were born, you are feeling that pressure on you. आपकी बॉडी पे उतना प्रेशर हमेशा से अप्लाई हो रहा है। ऑल द पीपल हु आर born, इवन जो लोग माउंटेन्स में born होते हैं, इतना हाइट पे नहीं born होते हैं, नीचे born होते हैं माउंटेन में। जो एकदम बहुत हाई माउंटेन्स है वहां पे आप विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जा सकते, वहां पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि एयर कम हो जाती है। तो जब आप नीचे होते हो तो आपकी बॉडी पे यूज टू हो गई है। आपके पेरेंट्स पे भी उतना ही प्रेशर अप्लाई हो रहा था, सो उनकी बॉडी यूज टू हो गई। जब आप बॉर्न हुए आपके ऊपर भी उतना ही प्रेशर अप्लाई हो रहा था, तो आपकी बॉडी यूज टू हो गई उस प्रेशर में रहने के लिए। अगर अब शाश्वत हम वो प्रेशर हटा देंगे, अगर हम उसको ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होएगा।
ठीक है, बट इतना प्रेशर व्हाट डू आई से इन हिंदी, इतना प्रेशर झेलने के लिए हमारी बॉडी यूज्ड टू हो गई है. Okay, no more questions. If you have questions, stay back after the class. Let me finish. No, write your question down, Misbah and Ganesh. I will give you chance after this class. Otherwise, ये class खत्म ही नहीं होएगी. And I wanted to do English also. English का भी time भी नहीं बचा है. So let me finish last part of it. ये तो altitude था कि altitude पे अगर हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे air pressure कैसे affect होता है. Now I gave you a homework that टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से या ठंडी की वजह से एयर प्रेशर कैसे इफेक्ट होता है. सो बिंद्या डिड दिस. बिंद्या, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? ओके बिंद्या, यू कैन जस्ट रीड इट आउट. डोंट शो इट टू अस, जस्ट रीड इट आउट. रीड करने से भी अच्छा है आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो हमें. यस बिंद्या, एक्सप्लेन करो क्या होता है. Okay, Bindya doesn't want to, it's fine. All right, Naina is raising her hand. Yes, Naina, tell me. नैना बताना चाहते हो ना, बोलो. एक तो आप मेरे को ये बताओ आपका नाम कैसे बोलते हैं. क्या मैं आपका नाम सही बोल रही हूँ? ओके ओके, हु एल्स? यस मिस, ये मेरे ट्यूशन टीचर का फोन है. अच्छा, ओके ओके, समझ गई. तो ऑल राइट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबन्ना अख्तर है. अगेन धीरे बोलो. साबन्ना अख्तर. ओके अच्छा ठीक है. अब आप बताओ, आपने हाथ रेस किया, आपका आंसर क्या है? मिस कुछ नहीं है. ओके, यू रेज्ड योर हैंड ना. मैं लोअर कर रही हूँ, अभी रेज नहीं करना जब तक क्वेश्चन नहीं हो. जब क्वेश्चन हो तब रेज करना. ओके, ओनली अर्शिया इज रेजिंग हैंड नाउ, बट आई विल गिव चांस टू अक्षय. अक्षय, आप बता सकते हो? आपने अभी तक कुछ नहीं बोला पूरी क्लास में. अभिषेक, कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट प्लीज. यस अक्षय, यू डोंट नो. थिंक, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर का क्या होगा? ये तो मैंने बताया आपको. मैं आपसे रीजन नहीं पूछ रही, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ जो मैंने आपको बताया था. इट्स रिटन. Ganesh wants to answer. Yes, Ganesh, you are raising your hand. मीन्स अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फिर एयर प्रेशर अगले दो भागों में ऐसा बढ़ जाएगा और फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ वो ऐसा हो जाएगा, मतलब उसके तरफ चले जाएगा. अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो अलग अलग भागों में टूट जाएगा एयर. तो फिर ऐसे ही वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ हो जाएगा. इसलिए जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहाँ पर एयर थोड़ा कम होता है. और एयर कम होता है तो क्या होता है? प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है. कम होता है. सो थैंक यू सो मच गणेश, यू आर राइट. सो अभी वी विल नॉट थिंक अबाउट कि एयर कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कैसे वो मूव कर रहा है. वील जस्ट थिंक अबाउट, look what happens is everyone. So I will share whiteboard and I'll draw and explain. Okay, all right. So now what happens is okay, before I draw, can someone tell me, रिया आप बताओ, जब मैं पानी को बॉईल करती हूँ तो क्या होता है? जो स्टीम होता है वो नीचे चला जाता है जमीन पे कि ऊपर चला जाता है? ऊपर. ऊपर जाता है. क्या स्टीम गर्म होता है कि ठंडा होता है? गरम. गर्म होता है. वेरी गुड. सो सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे वाटर को मैं बॉईल कर रही थी, ठीक है, ये वाटर है ऐसा अज्यूम कर लो. जब ये गर्म होता है, जो भाप होता है, जो स्टीम होता है, इट राइजेस अप. क्योंकि ये हॉट होता है, सो इट राइजेस अप.
नाउ व्हेन इट, जो भी हॉट चीज होती है वो ऊपर राइज करती है क्योंकि वो वेट में हल्की हो जाती है, वो लाइट वेट हो जाती है। सिमिलरली ये मेरे, आई विल टेक अ ब्लैक मार्कर सो सबको क्लियरली दिखेगा, ये मेरे एयर मॉलिक्यूल्स मैंने बहुत बड़े बनाए हैं, आपको दिखते नहीं है बट मैं बड़े बना रही हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ आए। दीज आर माई एयर मॉलिक्यूल्स। अब जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर, एक्चुअली वेट, आई गॉट एन आइडिया। हॉट जब गर्मी होगी और जब ठंडी होगी, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। जब एकदम बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो पता है क्या होता है, ये जो मेरे एयर मॉलिक्यूल्स है ना, ये एयर मेरी एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड कब होगी, जब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। और जब कोल्ड होता है तब क्या होती है, एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है, पास में आ जाती है, ठंडी हो जाती है, इसलिए आपको धुंध दिखती है। जो लोग माउंटेन्स की तरफ गए होंगे ठंड में तो आप देखते होंगे सब जगह कोहरा छाया होता है, उसको बोलते हैं फॉग। फॉग क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी एयर होती है और एयर में वाटर होता है वो सब पास पास आ जाता है, तो हल्का हल्का हमें दिखने लगता है। This is happening, it is expanding in hot and it is contracting in cold. Now if I am standing in hot, मेरे ऊपर मॉलिक्यूल ज्यादा है ही नहीं, बहुत कम है, यहाँ पे कहीं होगा एक, और अगर मैं यहाँ पे कोल्ड वेदर में खड़ी हूँ तो मेरे ऊपर मॉलिक्यूल्स हो गए ज्यादा। सो अगर हॉट में मॉलिक्यूल्स कम है, हॉट में मॉलिक्यूल्स कम है और यहाँ पे कोल्ड में मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। नाउ हु विल टेल मी? शुभम। शुभम आप मेरे को बताओ कि अगर हॉट वेदर में मॉलिक्यूल्स कम है तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, हाई या लो? हाई या लो? लो होगा। वेरी गुड, प्रेशर होगा लो, कम होगा। प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम है। एंड ठंडी में क्योंकि मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो पास पास आ गए, तो वो इंक्रीज हो गए एक जगह पे। दैट्स व्हाई अगर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए तो प्रेशर क्या हो गया, हाई। सिर्फ इतना सा बात है। नाउ एवरीवन इन योर नोटबुक्स आई वांट दिस डायग्राम, मेक दिस डायग्राम एंड स्पेसिफिकली जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, हॉट में एक्सपैंड, मॉलिक्यूल्स, प्रेशर लो, ये सब लिखो। चलो, एनीवन हु हैज क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड। जिसके पास भी क्वेश्चंस है प्लीज रेज योर हैंड। मिसबा, यस मिसबा, टेल मी। मिसबा, मुस्कान एंड खुशनुमा। ओके मिसबा, टेल मी। In geography, this chapter hot and cold chapter है ना? So this chapter is air pressure, मिसबा। और एयर प्रेशर में मैं आपको ये बताना चाह रही थी आज कि टेम्परेचर की वजह से एयर प्रेशर कैसे अफेक्ट होता है, एयर प्रेशर चेंज कैसे होता है। आप एक और ऐसे ही चैप्टर कराए थे ना जो हॉट और कोल्ड का था, और आपने उसकी वीडियो भी दिखाए थे लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में। नहीं, यही 7th में। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, सो सॉरी। मैं देख के आपको बताती हूँ, ठीक है? मैं देख के आपको बताऊंगी कौन से चैप्टर में हमने किया था। नहीं तो आपके पास अगर वो वीडियो है तो आप मुझे भेज देना, तो आई विल टेल यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Amrita and Raj are raising hand. Yes, Amrita and Raj. That lesson is properties of natural resources. उसमें क्या पॉइंट हम पढ़ रहे थे उससे, हॉट एंड कोल्ड से? व्हाट पॉइंट वर वी लर्निंग? We were learning about teachers. We learned about expand and contract. I think we were doing density. हम density कर रहे थे। Yes. या सो डेंसिटी। सो यहाँ पे डेंसिटी कम है क्योंकि वो सब कुछ दूर दूर हो गया, एक्सपैंड हो गया, तो डेंसिटी कम हो गया। डेंसिटी इज लेस इन ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर। हाँ ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा।
Everyone done making this drawing? No, teacher. Okay, take your time. Take 2 more minutes and finish drawing. Ganesh is raising hand. Yes, Ganesh, tell me. मिस डेंसिटी क्या होता है? Okay, density क्या होता है? Fair question. जो लिख रहे हैं please continue to write. जिसका हो गया they can listen. Density ये होता है. मिस आई एम कंप्लीट राइट. Okay, you're done writing. ठीक है, thank you Ganesh. Look, density होता है कि molecules. So everything in the universe, including you, plants, animals, things, everything is made of molecules. जितनी भी चीजें हैं वो सारी molecules से बनी है. जैसे हमने बोला एयर की ये molecule से, वैसे ही सपोज मेरे पास यहाँ पे है आयरन. आयरन को हिंदी में बोलते हैं लोखंड. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आयरन है, उप्स, एंड यहाँ पे मेरे पास कॉटन है. अब मेरे को एक बात बताओ गणेश, आयरन हैवी होता है कि कॉटन हैवी होता है? आयरन. आयरन, राइट. क्यों आयरन हैवी? इसलिए होता है क्योंकि आयरन ज्यादा डेंस है. डेंस से मेरा मतलब है आयरन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास है, ऐसे एकदम पास पास है. और जो कॉटन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर है. सो सेम स्पेस में, सेम एरिया में, अगर मैं इतना, ये मेरा फोन है, फोन का इतना स्पेस है जितना आपको दिख रहा है, अगर इतना ही बड़ा मैं आपका आयरन ले लूं और इतना ही बड़ा मैं कॉटन ले लूं, रुई ले लूं, तो मेरा आयरन बहुत हैवी होगा. क्यों? क्योंकि आयरन में जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम चिपक चिपक के हैं, जगह ही नहीं है. बट जो मेरे कॉटन के मॉलिक्यूल्स है वो फैले हुए हैं. तो अगर आयरन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, चिपक चिपक के है, तो वो ज्यादा है, तो उनका वेट भी ज्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. और मेरे कॉटन में क्या हो रहा है? कॉटन में क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, मेरा वेट कम होगा. सो जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं तो मैं बोलती हूँ आयरन मेरा मोर डेंस है, वो ज्यादा डेंस है. और कॉटन क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, आई विल से कॉटन इज लेस डेंस, वो कम डेंस है. और डेंस का मतलब क्या हुआ? डेंस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन स्पेस. एक जो गिवन स्पेस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं. अगर सपोज इतने ही स्पेस में, सेम स्पेस में, ठीक है, ये दोनों सेम है, अगर आयरन के 100 मॉलिक्यूल्स होंगे तो मेरे कॉटन के सिर्फ 20 होंगे. सो ज्यादा डेंस क्या हो गया? आयरन हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेम स्पेस इज मोर इन आयरन. सो आयरन इज मोर डेंस. थोड़ा समझा गणेश? यस मैं समझा. समझा ना? अगर आपको स्टिल क्वेश्चंस है क्लास के बाद वेट करना, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैंने पूरा एक क्लास लिया था सबको एक्सप्लेन करने के लिए. मैंने आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया. यस. Okay. Now with this, we were not able to do English today. It's okay. Okay, Pooja, if I see another message like this from you, next time उसके बाद में I will not let you enter my class. मेरी क्लास में आप enter नहीं कर पाओगे. We do not write such things in the class. चैट विंडो पे हम ऐसी चीजें नहीं लिखते हैं. This is your last warning. Next time से if you write anything like this, I will not let you enter my class. अगर आपको बात करनी है आप अलग से बात कर सकते हो, but not during class. ना बोल के ना चैट विंडो पे. All right, English we will do tomorrow. जिसने story rewrite नहीं किया है, please rewrite your story Snow White का. I'm gonna ask about it tomorrow. With this, we are ending today's class. I will send the PPT that I used today on the group, so you can complete your notes from that. If yes, Khushnuma has a question. Yes, Khushnuma. Teacher, can you send Snow White story PPT on I WhatsApp? already sent it ना Khushnuma. वो तो मैंने कितनी बार, 2-3 बार दोबारा. खुशनुमा, you can't keep deleting things. मैं बार बार नहीं सेंड कर सकती हूँ, बहुत प्रॉब्लम होता है. मैं आज कर दूंगी बट नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगी. प्लीज डोंट डिलीट. जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए आप डिलीट मत करो. यस अर्सिया. Miss, you were telling that when you will go to give the paper in school, you will get something. What is that? I'll get something. Yeah, you will get it then. ठीक है? What is that? I'll not tell you. It's a surprise. Yes, Muskan. Miss, I am
rewrite the Snow White story and मैंने लिखा है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो चलेगा ना? कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू हैव रीरिटन इट, आपने दोबारा से उसको अपने हिसाब से लिखा है, उसमें चेंजेस करके लिखा है, इट्स ओके। स्पेलिंग मैं करेक्ट बता दूंगी आपको, ठीक है? नॉट एन इशू। Means when we will go to give the paper. I will let you know, Arsia. I'll let you know. Okay. With that, I'm ending today's class. If you have any questions left, अगर आपके questions बचे हैं, then you can stay. Otherwise, you can leave the class. अगर questions है, I can clear it. Otherwise, you can leave. टीचर पायल टीचर क्लास 10:30. Usual time पे है. Bye bye. Bye, Miss. Bye. Yes, Pratik has a question. Yes, Pratik, tell me. प्रतीक, आपको क्वेश्चन है? बाय जयश्री। ऑलराइट, और मिस बा को क्वेश्चन है। यस मिस बा, टेल मी। Mansi Didi, that you do na that chapter in that chapter density of matter. नेचुरल रिसोर्सेज में किया था डेंसिटी ऑफ मैटर। जो आप वो वीडियोस भी उसका दिखाए थे कि अगर हॉट बॉल को करेंगे तो वो अंदर आसानी से चला जाएगा, अगर कूल करेंगे तो नहीं जा पाएगा। या ओ मेटल रिंग एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। यस यस, सेम प्रिंसिपल। सो लुक, हम जो एक चैप्टर में पढ़ेंगे इट विल ऑलवेज कम बैक, बिकॉज रूल्स तो वही हैं और वही सेम रूल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। तो अगर वो मेटल बॉल जो था उस पे रूल वो अप्लाई हो रहा था, तो जो हवा भी मॉलिक्यूल्स का बना है, तो हवा पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। या वेरी गुड पॉइंट। यस, थैंक यू मिस बग, करेक्ट करेक्ट, मेरे को याद आ गया, इट वाज मेटल बॉल वाला एक्सपेरिमेंट। यस, ओके, बाय बाय, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? जो भी लोग रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस है? नहीं तो बाय। बाय टीचर बाय प्रतीक। बाय टीचर। बाय टीचर बाय कृष्णमा, बाय। यस, गणेश हैज अ क्वेश्चन। गणेश, टेल मी। नो मिस गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, बाय एवरीवन, यू Bye, कैन miss. लीव द मीटिंग। चलो, आई विल एंड इट आल्सो। बाय, आई विल सी यू टुमारो।